Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing preposition and this is session 1. In this session we are doing types of preposition. Let's start. A preposition links nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. What is the use of preposition? Without preposition we cannot link noun, pronoun or other phrases. These are usually short words and are normally placed directly in front of nouns. These are few points that is very important to know about preposition, right? जब आप preposition करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ यूज होता है और हम यूज भी कर रहे हैं but we don't know कि these are preposition. तो these are usually short words and are normally placed directly in front of nouns. In some cases we find preposition in front of gerund verbs also. तो हम gerund verbs के पास भी हम preposition देखते हैं. Some examples of prepositions are जैसे out, in, up, on, down. आपने देखा होगा कि हर एक सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड्स मिलते हैं. Then you will have to understand कि these are prepositions. ठीक है? At, to, with, over, under, above, into, by, of, next to, besides, between, etc. These are all prepositions. Prepositions define many relations. सबसे अच्छी बात क्या है prepositions के, ये define करते हैं relation को. जो object है, जो subject है, उनके relation को preposition define करते हैं sentence में. On the basis of relation, they show their types are as follow. तो जो relation वो show करते हैं subject and object के बीच में, उन्हीं को ध्यान पे रख के इनके कई types हैं. What are the types of preposition? Preposition for place, preposition for time, for direction, for device, instrument or machines, for agent and for prepositional verb. तो कितने types हो गए preposition के? आपने देखा place, time, direction, device, instrument, machines, agent and prepositional phrase. Now, preposition for time. In, on, at. यदि आपको time दिखाना है sentence पे, तो आपको prepositions कौन से लगाने होंगे? वो in, on, at है. Use of in. जब हम month of year दिखाते हैं, year देते हैं, season का हम जब जिक्र करते हैं, तो हम एक particular time जब हम बताते हैं, तो हम in का use करते हैं. Particular time, month, year और season. In June, in 1995, in morning, in first week of March, in summer, etc. जब हम century और specific time जब past का है उसे बताते हैं तो भी हम in का use करते हैं. In 21st century, in stone age, in past, so he was born in 1965. तो यहाँ पर हमने कौन सा preposition use किया? In, जो कि समय बता रहा है 1965. आपने ऐसे कई सेंटेंसेस पढ़े हैं. प्लीज अभी जब भी आप अभी कुछ भी पढ़ोगे इंग्लिश में प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग और भी परफेक्ट हो जाएगी. यूज ऑफ ऑन. डे, डेट और पर्टिकुलर डेट जब हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो हमें ऑन लिखना पड़ता है. ऑन संडे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन 10th मार्च, लाइक दिस. एट हम कब यूज करते हैं? टाइम ऑफ क्लॉक और शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम. जब घड़ी का समय हमें बताना रहता है तो एट का यूज करते हैं. एंड शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम जब हम बताते हैं. एग्जाम्पल, एट 5 o'clock, at sunset, at lunch time, at the moment, etc. The concert will start at 9 o'clock. You cannot write in, you cannot write on, only at. So it's very important to learn preposition. Now, use of at. You have just seen कि this we have done. It's the concert. The concert will start at 9 o'clock. Preposition for place. अभी हमने टाइम का जाना, अब हम प्लेस में यहाँ भी आप देख लो इन, ऑन, एट है. तो आप देखोगे कि कैसे सेंटेंस में आप क्या बताना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपका प्रीपोजिशन भले ही वो रहे, सेम रहे, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सेंटेंस इट चेंजेस, इट्स मीनिंग चेंजेस.
प्लेसेस विच हैव सम बाउंड्रीज, जहां पर बाउंड्रीज है, चार दीवारी जब आप बता रहे हो तो आपको इन बताना है, इन हॉल, इन स्कूल, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में आप देख रहे हो चार दीवारी होती है, तो प्लेसेस विच हैव सम बाउंड्रीज, वहां आप इन का यूज कर रहे हैं. ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, किसी भी जगह की सतह, सरफेस, ऑन अ टेबल, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन अ पेज एक्सेट्रा, तो हम ऑन का यूज करते हैं. ही वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, छत की सतह पर वो काइट फ्लाई कर रहा था. यूज ऑफ एट इन रेफरेंस टू प्लेस. स्पेसिफिक प्लेस, जब आपको पता है स्पेसिफिक प्लेस, एट द एंट्रांस, राइट, एट द टेबल, at front of the chair, at bus stop, at the edge of roof. जब आप स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन कर रहे हो सेंटेंस में तो आपको एट लगाने हैं. Her parents were waiting for her at the entrance of school. अगर इन द हो जाएगा स्कूल तो चेंज हो जाएगी इसकी मीनिंग. सो एट द एंट्रेंस ऑफ स्कूल. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. हमने अभी प्लेस देख लिया, टाइम देख लिया. जब हम मूवमेंट दिखा रहे हैं सेंटेंस पे तो कौन से प्रीपोजिशंस हम यूज करेंगे? इनटू, आउट ऑफ, ऑन टू. दीज डिस्क्राइब द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ वन नाउन ऑफ प्रोनाउन टुवर्ड्स अनदर नाउन ऑफ प्रोनाउन. दीज इंक्लूड्स टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रू एक्सेट्रा. आई वेंट टू द बुक स्टोर. डायरेक्शन क्या है? मैं बुक स्टोर की तरफ गया. I went to the bookstore. The swimmer jumped into the pool. स्विमर ने कहा जंप किया? पूल के अंदर. ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन देयर इज अ मूवमेंट यू विल हैव टू पुट इनटू, और जब आपके मूवमेंट नहीं है तो आप इन का यूज करते हो. द डॉग वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, राइट. तो इस तरह से आपने देखा डायरेक्शन का पता हमें प्रीपोजिशन के से चलता है. प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, ऑन, इन, विद, बाय, किस तरह से हम रिलेशन है नाउन प्रोनाउन का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. These describe the way or means by which something happened or happens when used in a sentence. Example, he goes to work by train. वो कैसे जाता है काम के लिए? वो by train जाता है. I came there in a taxi. The boy speaks like an old man. तो आपने देखा कि इन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया है, मीनिंग चेंज हो गया है. बट प्रीपोजिशन इन आपने टाइम में भी देखा, प्लेस में भी देखा, और आप मैनर में भी देख रहे हो. प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, ऑफ, बाय. तो हम मेजरमेंट जब करते हैं तो भी हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं. These connect the quantity of the noun with the noun itself when used in a sentence. तो ये नाउन के क्वांटिटी को बताता है, जबकि सेंटेंस में जब हम नाउन को हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पाउंड ऑफ चीज. कितना हमने चीज लिया? पाउंड ऑफ चीज टुडे. 1/3 of the students were present in the class. तो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं? ऑफ का यूज कर रहे हैं. दिस शॉप सेल्स क्लोथ बाय द यार्ड, है ना, बाय मीटर, बाय यार्ड. तो इस तरह से कहाँ बाय लगना है, कहाँ ऑफ लगना है, एंड दिस यू नीड टू लर्न. आप कहीं भी तुक्का नहीं लगा सकते, आपको पूरा का पूरा लर्न करना है प्रीपोजिशन कहाँ कैसे लगाना है, क्योंकि अगर आपने गलत प्रीपोजिशन लगा दिया तो पूरे सेंटेंस की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है. प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स और एजेंट, किस सोर्स में कैसे हम वो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का यूज हो रहा है. फ्रॉम, बाय. These convey that one noun or pronoun has originated from another noun or pronoun in the sentence. तो एक नाउन और प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है वो ओरिजिनेट हुआ है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस में. The earth receives light from the sun. तो here the agent is or source is from the sun. तो sun है तो from the sun.
दिस पोएम इज रिटन बाय मी, तो किसके द्वारा पोएम लिखी गई है? मेरे द्वारा, तो बाय मी। ही डिड द हेल्प फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, तो इस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से सोर्स और एजेंट पे हम फ्रॉम एंड बाय का यूज कर रहे हैं। नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ पोजेशन, जब हम कोई चीज अपनी कहते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशंस लगाते हैं? इन, विद, ऑफ। These indicate that one noun or pronoun owns another noun or pronoun in the sentence. कैसे? I met the boy with red hair today. With red hair, उस लड़के के बाल कैसे हैं? रेड है। तो with the boy, जो लड़का है जिसके रेड हेयर है, उनसे मैं मिला। तो यहाँ पे पोजीशन है तो हमने with लगाया। The old man had no money on him. यहाँ देखो on है preposition. My friend's father is a man of wealth. तो यहाँ off है। तो इस तरह से आप देख रहे हो जब हम पोजीशन यूज कर रहे हैं तो भी हम preposition का उपयोग कर रहे हैं। इन, ऑफ, विद, आपने पहले भी इन एंड ऑफ पढ़ा और यहाँ भी इन एंड ऑफ है। preposition सेम है लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो सेंटेंस के साथ बदलता जा रहा है। Now, preposition for device, instrument और machine. कैसे? By, with, on. Example, she comes by bus daily. He opened the lock with key. कैसे उसने खोला? चाबी से। तो यह चाबी से means with. कैसे आती है? बस के द्वारा, तो by बस। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ प्रीपोजिशन, आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट यू ट्रांसलेट इनटू हिंदी द सेंटेंस। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ लगाना है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। नाउ प्रीपोजिशनल वर्ब किसे कहते हैं? प्रीपोजिशनल वर्ब्स आर ट्रांजिटिव एंड दे हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। ट्रांजिटिव आपको पता है जब एक्शन पास ओवर होते हैं ऑब्जेक्ट में। तो prepositional verb is verb plus preposition. Frequently used prepositional phrases are laugh at, knock at. Prepositional जो phrase है वो क्या है? Transitive होते हैं and they have a direct object in sentence. जो क्या होते हैं? verb plus preposition जब हम देखते हैं तो prepositional phrase होते हैं। यहाँ पे देखो लाफ जो है वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब वही होता है जिसका आप पास्ट फॉर्म बना सकते हो। एक्शन वर्ड वर्ब को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो इसके पास्ट फॉर्म को आप याद करो। तो अगर किसी भी वर्ड का पास्ट फॉर्म बन रहा है दैट मीन दैट इज वर्ब। तो लाफ का आपको पता है लाफ्ड पास्ट फॉर्म है, मतलब ये वर्ब है। उसके साथ प्रीपोजिशन एट, लाफ एट, बट इसका जो अर्थ है, इट्स मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट व्हेन यू विल पुट इट इन अ सेंटेंस। Now knock at, listen to, look at, look for. These are all prepositional verbs. She knocks at the door. We believe in God. So, what have we learned today? We have learned preposition and what are the types of prepositions. We have seen many examples and in this way you will have to understand preposition, where to use it, how to use it, and then be perfect in this chapter, in this topic. I'll meet with you in the next class. Till then, take care, do the revision. Thank you.